Okay, so we were learning the formulae last lecture. In the previous lecture, we discussed different formulae in order to calculate the number of stereoisomers. Let's do a few more examples based on those formulae. So this was the last example which we had discussed. Third one. Now let's go into the fourth one. Fourth. Yes. Tell me what should we do? The fourth one. Yes. So tell me, in the fourth one, how many systems are showing geometrical isomerism? Yes. How many systems are showing geometrical isomerism? This is one system which is showing geometrical isomerism. And this is one system showing optical isomerism because this is a chiral carbon. So the value of n is equal to 2. That is the total number of systems showing geometrical isomerism plus optical isomerism. Now, is this a symmetrical compound or an unsymmetrical compound? Unsymmetrical. It is unsymmetrical. So straight away we can use the formula. The total number of stereoisomers is equal to this 2 to the power of n. So 2 squared is 4. This कुछ लोगों ने इसको भी अगर गिन लिया है तो गलत करेंगे क्योंकि this cannot show geometrical isomerism. Why? Because अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे CH2 है. There are two same atoms attached to carbon. Hence, we cannot take this as a system showing geometrical isomerism. So the total number of systems showing geometrical isomerism is only this much, that is 1, and the number of systems showing optical isomerism is this one, that is again 1. So 1 plus 1 is 2. Total number of systems showing GI plus OI is equal to 2. Since the system is the entire compound is unsymmetrical, I can straight away go for the formula 2 to the power of n, 2 squared. Okay, next. And yes, since there is a chiral center here, all isomers will be optically active. So there is no optically inactive isomer here. Next question. Is this a symmetrical compound or an unsymmetrical compound? Symmetric. Yeah, again it is symmetrical. आप यहाँ से एंड से चालू करोगे चेक करना, आपको क्लियरली दिखेगा कि हाँ ये एंड सेम है इस एंड की तरह, सिमिलरली ये पार्ट सेम है इस पार्ट की तरह, और ये पार्ट सेम है इस पार्ट की तरह, मतलब ये सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है. ओके, सिमेट्रिकल हो जाता है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि n का वैल्यू ऑड है या इवन है. So let's see. How many systems are showing geometrical isomerism? Only this much can show. So this system shows geometrical isomerism. This double bond के around geometrical isomerism possible है. Then this is a chiral carbon which you can see star mark करके रखा है. So वो optical isomerism दिखा रहा है. ये भी एक स्टार मार्क कार्बन है तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है. तो
number of systems showing GI plus number of systems showing OI is equal to 3. 3 is an odd number. The moment we odd number, वापस चेक करना पड़ेगा हमको फॉर्मूले के अंदर जो हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे लास्ट टाइम. इसमें ये था when n is odd. इसके अंदर भी दो सब पार्ट्स हैं. If the middle stereo center is a pseudo chiral atom, ये वाला केस है. लेकिन अभी हमारे केस में तो ऐसा नहीं है. जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा उसके तो मिडिल में डबल बॉन्ड है. कोई मिडिल स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन तो नहीं है उसके अंदर. स्यूडो कायरल. तो स्यूडो कायरल अगर नहीं है बीच में तो इसको भूल जाओ. नेक्स्ट वाला बी पार्ट देखो. बी पार्ट क्या है? ये वाला बी पार्ट है. If the middle of the compound contains a double bond, then total number of stereoisomers is equal to this. तो ये वाला हम लोग देखेंगे बिकॉज हमारे कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड है. मिडिल ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स अ डबल बॉन्ड. Since middle of the compound contains a double bond, we will go for this formula. तो लगा देंगे फॉर्मूले. लगा दो. Yes. फॉर्मूला लगा दिया. So total number of stereoisomers is equal to this. n की वैल्यू 3 डालो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर. So if you put n as 3, you get this answer as 6. So 6 is the total number of stereoisomers. And 6 is the total number of stereoisomers. उसके अंदर you will again apply this formula. Number of optically active forms कितने हैं उसमें से और number of optically inactive forms कितने हैं उसमें से. तो number of optically active forms के लिए again this formula we will use. So this is the number of optically active forms. And this is going to be number of optically inactive forms. So इस कंपाउंड के लिए टोटल 6 स्टीरियोआइसोमर्स है. 6 में से हम लोगों ने ये देखा अभी कि there are 4 optically active forms and there are 2 optically inactive forms. Okay, next question. अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो ध्यान से आप क्या क्या सिस्टम्स है जो जीआई और ओआई दिखा रहे हैं. क्या क्या सिस्टम्स है जो जीआई और ओआई दिखा रहे हैं. देखो ये वाला है सिस्टम डबल बॉन्ड. तो इसके अराउंड जीआई हो सकता है. ये वाला कायरल कार्बन है मतलब ये ओआई दिखा सकता है. And if I look at this entire system, ये एलिन है. हम लोगों ने डिस्कस किया है एलिन के केसेस. So this is the एलिन. अब देखो एलिन जब होता है तो क्या देखते हैं हम लोग. देखते हैं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो इवन है या ऑड है. इवन है. This is an even number of double bonds. After that
we know that if the number of double bonds is even in the allene, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो दिखा सकेगा प्रोवाइडेड दैट ये दो ग्रुप्स आपस में अलग हो और ये दो ग्रुप्स आपस में अलग हो, जो कि है यहाँ पे। तो मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है ये वाला पोर्शन। Why? Because this is an alien with an even number of double bonds, and also after that we have checked that the groups attached to each end are different. H and F are two different groups. This H and this entire thing are two different groups. Yani this can also show optical isomerism. तो टोटल हमारे सिस्टम्स हो जाएंगे 3। ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, किसी भी तरीके से कोई भी सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, तो स्ट्रेट अवे वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power of n, that is 2 cube. Yes, sir. Okay, any doubt in this? And yes, all will be optically active because इसमें chiral center है और unsymmetrical compound है, तो obviously all will be optically active. Okay, next example. इसमें बताओ, आपको क्लियरली दिख रहा है क्या हो रहा है इसमें? जितने भी स्टार मार्क्स दिख रहे हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? Chiral. ऑल आर कायरल कार्बन एटम्स। स्टार मार्क का मतलब होता है कायरल कार्बन एटम। हर एक कायरल कार्बन एटम को चेक करो, आप देखोगे चारों के चारों ग्रुप से अलग है, इसके लिए उसके ऊपर स्टार मार्क डालना है। फॉर एग्जांपल इफ आई चेक द फर्स्ट वन, तो ये ब्रोमीन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये CH3 है, एक हाइड्रोजन रहेगा और एक बाकी पूरा पोर्शन जो है, यानी दिस इज अ कायरल कार्बन बिकॉज देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसे हर एक कार्बन को आप चेक करोगे तो आपको दिखेंगे जितने भी स्टार मार्क किए गए हैं वो सारे के सारे कायरल कार्बन एटम्स हैं। इसको कायरल मत ले लेना क्योंकि इसके 2 हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है। So there are 4 chiral carbon atoms. Now, compound symmetrical है या अनसिमेट्रिकल है वो चेक करना पड़ेगा। Symmetrical है. सिमेट्रिकल है, एंड से जाओगे तो ये पार्ट सेम है इस पार्ट की तरह, ये पार्ट सेम है इस पार्ट की तरह, ये पार्ट सेम है इस पार्ट की तरह, तो सेम हो गया। दोनों एंड से चेक करते हुए जाना है, hence it is a symmetrical molecule. अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो फिर चेक करना पड़ेगा कि जो वैल्यू ऑफ n इज इवन और ऑड, ये चेक करना पड़ेगा। 4 है यहाँ पे, कोई सिस्टम GI नहीं दिखा सकता क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, so there is no scope for geometrical isomerism. तो ये इवन हो गया। Number of systems showing optical isomerism is 4 and 4 is an even number. The molecule is symmetrical. Since the molecule is symmetrical, हमें वापस देखना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आ जाओ, फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे था if a molecule is symmetrical and case 1 था if n is even. So when n is even, we apply this formula. Total number of stereoisomers is equal to this formula. Number of optically active forms, number of optically inactive forms, सब फॉर्मूले के हिसाब से है। So when n is even, we apply this formula because the compound symmetrical है। तो लगा देते हैं फॉर्मूला। हाँ, लगा देते हैं फॉर्मूला। लगा दिया फॉर्मूला।
So if I put NS4 here, I get the answer is 10. Total number of stereoisomers is equal to 10. हो गया सर. Optically active forms. And optically inactive forms. Okay. इसमें आते हैं अभी इस वाले क्वेश्चन. There are two chiral carbon atoms here which have been marked. So N is equal to 2. Compound unsymmetrical है, तो सीधा ही आ जाएगा आंसर. All will be optically active. Why? Because यहाँ पे कोई symmetrical molecule नहीं है. Symmetrical भी नहीं है और chiral centers है, इसके लिए all will be optically active. Okay. What about this one now? Is this symmetrical or unsymmetrical? Symmetrical. Symmetrical. Yes, symmetrical. Number of chiral carbon atoms is 2. तो even number हो गया, symmetrical हो गया, तो फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला. Symmetrical है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा even के लिए. N is equal to 2. There are two chiral carbons, and 2 is an even number. So I'll go for this. So there are 3 stereoisomers in total for this. And इसमें से optically active forms के लिए फॉर्मूला फिर से 2 to the power of n minus 1 is the number of optically active forms, and बाकी will be optically inactive forms. तो फॉर्मूला के हिसाब से जाना है.
हो गया सर। Okay. Last molecule based on the formula. Yes. Tell me about this. Unsymmetrical है वो तो ठीक है, वो तो सबको दिख ही रहा है. But what is the value of n? सर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। No, that is okay. But what is the value of n? वन। How one? सर वो जो CH है वो तो एक है जो कैरल कार्बन है, जिसके ऊपर स्टार मार्क लगा के रखा है मैंने. वो एक कार्बन है जो कैरल है. Okay, that is one thing. What are the other systems showing Gi and Y? ये तुमने जो बोला वो एक तुमने आइडेंटिफाई किया, वो तो मैंने लगा के रखा था स्टार मार्क. तो दिस इज शोइंग OY बिकॉज इट इज अ कैरल कार्बन. चलो हो गया. नेक्स्ट क्या? व्हाट नेक्स्ट? Is there any scope for geometrical isomerism here? यस सर। Where? सर द डबल बॉन्ड। Yes. So ये वाला सिस्टम को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है. ओके, व्हाट नेक्स्ट? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं और बोल देते हैं n is equal to 2. ऐसे लोग बहुत लोग करते हैं. क्या बोलते हैं वो लोग? They say that n is equal to 2 क्योंकि एक यहाँ पे दिख गया और एक यहाँ पे कैरल कार्बन दिख गया, एक Gi वाला डबल बॉन्ड दिख गया और एक कैरल कार्बन दिख गया, तो हो गया 2. But that is wrong. 2 is not the value of n. 2 is not the value of n. क्यों ऐसा? Yes, why is 2 not the value of n? क्या हम लोग मिस कर रहे हैं इसमें? और एक चीज, what have we missed? ये सिस्टम क्या सिस्टम है? हम लोगों ने काफी सारे सिस्टम्स पढ़े हैं ना, एलिन्स, क्यूबुलिन्स. ये कौन सा है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल सिस्टम. यस, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल सिस्टम भी हम लोगों ने पढ़ा है. और वहां पे क्या बोला था हम लोगों ने? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल सिस्टम के अंदर कि अगर चारों के चारों ऑर्थो पोजीशंस ब्लॉक्ड है, जैसे ये देखो चारों के चारों ऑर्थो पोजीशंस पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, तो चारों के चारों ग्रुप्स जो है वो ऑर्थो पोजीशंस पे लगे हुए हैं. These are the ortho positions. So ortho positions पे अगर ग्रुप्स लगे हुए हैं तो क्या है, फिर हम लोग ये चेक करते हैं कि वो जो ग्रुप्स लगे हुए हैं आपस में वो लोग अलग है या नहीं है. ये दोनों अलग ग्रुप्स है, सिमिलरली ये दोनों अलग ग्रुप्स है. तो अगर then it shows optical isomerism. तो ये पूरा जो सिस्टम है, this also is showing optical isomerism because it is ortho substituted bifinary. और ऊपर से ये दोनों ग्रुप्स आपस में अलग है, ये दोनों ग्रुप्स भी आपस में अलग है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है. तो ये और एक सिस्टम है हमारे लिए. Hence n is equal to 3. So 3 कैसे आया? एक Gi ये वाला दिखा रहा है जो डबल बॉन्ड ये वाला, एक OI दिखा रहा है ये वाला पैरेलल कार्बन जिसके ऊपर स्टार मार्क लगा के रखा है, और तीसरा सिस्टम जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है वो है पूरा हमारा ये
because it is ortho substituted by n, hence n is equal to 3. तो सीधा 2 क्यूब लगाओगे, अनसिमेट्रिकल है इसके लिए, 2 to the power of 3. So total number of stereoisomers will be equal to 8. सर ये जो आपने केस बताया ये एलिन्स क्यूमुलेंस में भी अलाउड है क्या? हाँ, मतलब पूरा सिस्टम को देख के यस यस, जैसे देखो यहाँ पे किया था ना एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? यस 6. तो इस पूरे को एक माना है ना OI दिखाने के लिए. ओके सर. This system is an alien system. और वो OI दिखा रहा है क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है और ये अलग है और ये दोनों. सो एलिन एज अ सिस्टम लेना है पूरा, क्यूमुलिन एलिन जो भी है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाय फेन, इनको एज अ सिस्टम 1 लेना है. 1. ओके फाइन. Formula based questions are over. Last type of question based on number of stereoisomers. वो कर लेते हैं. ये आपका लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये समझा दूंगा मैं. कॉपी करो पहले क्वेश्चन. अभी इसमें फॉर्मूला लगा के काम नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस एज अ सेपरेट क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टीरियोइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? अब फॉर्मूला लगा के काम नहीं कर सकते. क्यों फॉर्मूला लगा के काम नहीं कर सकते अभी देखते हैं. These are systems showing interdependent geometrical isomerism. मतलब क्या, इसको समझ लो पहले. इंटरडिपेंडेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा साइक्लिक रिंग के यहाँ पे देखो ये आपस में जीआई दिखा सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप से लगे हुए हैं रिंग को. सिमिलरली ये और ये दिखा सकते हैं आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. ओके, वैसे ही ये और ये आपस में दिखा सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसे मल्टीपल सिस्टम्स हो सकते हैं जो जीआई दिखा रहे हैं. सो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो याद रखना पड़ेगा कि अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल है और वहां पे ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वहां पे इंटरडिपेंडेंट जीआई दिखा रहे हैं. इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट जीआई. ओके सर इंटरडिपेंडेंट क्यों है, वापस बताओगे? हाँ, इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है इसमें अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं. अगर 3, देखो यहाँ पे 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो अगर 3 ग्रुप्स लगे होते हैं या 3 से ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इंटरडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है. क्योंकि एट अ टाइम यू कैन कंपेयर, यू कैन फोकस ऑन 2. इफ यू जस्ट टेक 2 एट अ टाइम तो वो आपस में जीआई दिखा सकते हैं. सो इफ आई टेक जस्ट दिस तो ये आपस में जीआई दिखा सकता है. क्यों? बिकॉज एक बार ये पीएच को डैश पे डालूंगा, एक बार इस पीएच को वेज पे डालूंगा, तो फिर ये आपस में जीआई दिखा रहे हैं. सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये आपस में जीआई दिखा रहे हैं. तो इंटरडिपेंडेंट सिस्टम हो गया है यहाँ पे. सिर्फ ऐसा अगर होता तो ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ये एक ही सिस्टम है जो जीआई दिखा रहा है. या फिर अगर ऐसा होता
यस सर, समझ गया। तो भी इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो एक ही सिस्टम में जो GI दिखा रहा है। ऐसा होता तो भी इंटरडिपेंडेंट नहीं है, मतलब सिर्फ दो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं अगर, तो इंटरडिपेंडेंट नहीं है फिर, तो नॉर्मल फॉर्मूला से करेंगे, बट फिलहाल ऐसा नहीं है। यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, चारों के चारों कार्बन एटम्स जो है उन पे ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब इनको कैसे देखना है, थोड़ा अलग तरीका है इनको सॉल्व करने का, तो वो समझ लो। अगर ऐसा होता है इंटरडिपेंडेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर हो रहा है, then count the number of carbon atoms to which groups are attached. तो एक ये कार्बन जहाँ पे pH अटैच्ड है, एक ये कार्बन जहाँ पे COOH अटैच्ड है, एक ये कार्बन जहाँ पे pH अटैच्ड है, एक ये कार्बन जहाँ पे COOH अटैच्ड है। इस तरीके से देखना होता है n के वैल्यू को। So what is the value of n? n is equal to 4. So n is equal to 4. ये पहली बात है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? सर 5 रिंग्स होते हैं और 4 लगे होते हैं तो क्या होता है? 5 रिंग्स मतलब 5 की रिंग होती है और 4 साइड पे लगा तो होता है। 4। ओके, मतलब समझ। So there are 4 interdependent systems showing geometrical isomerism. तो यहाँ पे n की वैल्यू ऐसे निकालनी होती है। How many systems are showing geometrical isomerism? So 4. Okay. यहाँ तक क्लियर हो गया? 4. फिर n को 2 से डिवाइड करना होता है। So 4/2 that is equal to 2. अब ये डिवीजन करने के बाद 2 से जो मिलता है, this is what we have obtained. ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो इंपॉर्टेंट है। This represents the maximum number of dashes that I can use to draw my structures. I repeat, this number 2 represents the maximum number of dashes which I can use for drawing the structures. इसमें structures draw करके देखना पड़ेगा। Structures draw करने से पहले हमें n/2 करना पड़ता है। n/2 का जो value है, that tells me the maximum number of dashes which I can use for drawing the structures in total. तो अगर 2 आया है मतलब maximum number of dashes possible is 2. Maximum number of dashes possible 2 का मतलब क्या है? Number of dashes can be equal to 0 also because maximum अगर 2 है तो dashes 2 या 2 से कम हो सकता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ maximum 2 dashes can be used, मतलब क्या? 2 भी यूज कर सकते हैं या 2 से कम भी यूज कर सकते हैं ना, मैक्सिमम वर्ड यूज किया है मैंने। So number of dashes I can use कितने? 0 और how many dashes I can use 0 के अलावा? I can use 1 dash or I can use 2 dashes, but I cannot use 3 dashes because 2 is the maximum number of dashes which I can use. तो या तो मैं 0 dash यूज कर सकता हूँ कंपाउंड ड्रॉ करते वक्त, या फिर 1 dash यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं 2 dashes यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करना चालू करते हैं। तो फर्स्ट जहाँ पे सिर्फ 0 dash है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में इस तरीके से ड्रॉ करूंगा जो 1 है, इसमें किसी भी ग्रुप को मैंने डैश पे नहीं डाला है, hence I say there is no dash or 0 dash. So there is 0 dash present because all groups are on wedges. सब ग्रुप्स मैंने वेजेस पे दिखाए हैं, सभी के सभी ग्रुप्स मैंने क्या किया है? वेजेस पे दिखाए हैं। क्यों? बिकॉज आई एम यूजिंग 0 dashes. तो ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है जहां पे 0 dash है। सेकंड, मैंने अभी एक डैश यूज किया है, ओनली 1 dash, तो उससे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, पीएच को मैंने डैश पे डाला है। सो दिस इज वन अनदर स्ट्रक्चर पॉसिबल, राइट? तो पहले वाले में मैं 0 डैशेस यूज कर रहा हूँ,
सेकंड वाले में मैं 1 डैश यूज कर रहा हूं, और वो जो 1 डैश मैंने किसके लिए यूज किया है? पीएच के लिए यूज किया है। ओके, एक पॉसिबिलिटी ये सकती है जहां पे मैं COOH को पीएच डैश पे डाल दूं, जैसे ये वाला देखो, लुक एट द फिफ्थ वन, COH को डैश पे डाला है, तो मैंने एक डैश यूज किया है इसमें भी। Now if I start using 2 dashes, तो ऐसा भी पॉसिबल है, पीएच के लिए भी डैश, COH के लिए भी डैश, तो थर्ड वाला कंपाउंड मिलेगा। और फोर्थ वाला कंपाउंड में क्या किया मैंने? दोनों पीएच को डैशेस में ले लिया है। So maximum 2 dashes can be used. So third में भी 2 dashes, fourth में भी मैंने यूज किया 2 dashes. So 2 dashes वाले कंपाउंड्स कितने हैं? सिर्फ 2, that is third and fourth. 1 dash वाला कंपाउंड कितना है? This one, एक डैश है, and this one, एक डैश है। तो इसमें भी 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे एक डैश है, और कोई भी डैश नहीं है, वो ऐसा कितना कंपाउंड है? वो ये वाला है। So in total there are 5 structures which I have drawn so far. और कोई पॉसिबल तो नहीं ड्रॉ करना। अभी जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर को चेक करो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखो, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। थर्ड में क्या है? यस, थर्ड में क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यस, वेरी गुड, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये वाला सेंटर ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, सेम ग्रुप्स एट सेम डिस्टेंस, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो ऑप्टिकल इनएक्टिव। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। So the total number of stereoisomers is equal to 5. यही 5, क्योंकि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता कोई भी एक, तो उसको फिर उसका मिरर इमेज भी आता, यानी उसके एनांशियोमर भी आता, फिर तो उसको भी गिनना पड़ता स्टीरियोआइसोमर में। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव आता है तो उसका एनांशियोमर भी आपका दूसरा स्टीरियोआइसोमर गिनना पड़ेगा ना। सर 2 डैश वाला था क्या? ये है 2 डैश वाले, थर्ड और फोर्थ। 2 डैश वाले भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है ना, बिकॉज इसमें पीओएस है और इसमें सीओएस है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए सीओएस की वजह से। तो अगर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब जिसमें पीओएस भी नहीं है और सीओएस भी नहीं है, तो उसका जो मिरर इमेज आएगा उसको भी गिनना पड़ेगा स्टीरियोआइसोमर में। बट इसमें ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। So the total number of stereoisomers is equal to 5. Okay. How many optically active forms are there? 0. कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो 0 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स कितने हैं? 5।
सारा के सारे ऑप्टिकल इनएक्टिव है। सर इसका कोई इजी मेथड नहीं है कि टाइम नहीं। टेकिंग हो जाएगा? दिस इज द ओनली पॉसिबल मेथड, यही सबसे इजी मेथड है। ओके, यही सबसे इजी मेथड है, n/2 निकाल के करना। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डैशेस पॉसिबल आपको निकालना होता है और फिर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। ओके सर। नेक्स्ट एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा फिर। नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छा उसके पहले हाँ, नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स इज इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों है? मेसोफॉर्म का मतलब क्या होता है? मेसोफॉर्म का मतलब होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, पहली बात ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, और Any2। उसके पूरे फैमिली में ये जितने भी मैंने स्टीरियोइसोमर्स बनाए हैं ना 5, इनमें से एटलीस्ट 1 should be optically active, एटलीस्ट 1 should be optically active। अगर 1 ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो फिर बाकी जितने हैं उनको हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव वालों को मीजो बोलेंगे। आई रिपीट, मीजो का मतलब होता है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो खुद, लेकिन उसके फैमिली में जितने स्टीरियोइसोमर्स बनाए गए हैं उनमें से कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव हो। बट यहाँ पे मीजो का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने फैमिली में स्टीरियोइसोमर्स बनाए हैं सबके सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक भी ऐसे पॉसिबल नहीं है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। नॉट अ सिंगल आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, hence there is no mesoform, so number of mesoforms is equal to 0। सर yes। सर आपने मीजो में Any2 लिखवाया था। हाँ, तो Na2 ही हुआ ना, मतलब कोई यहाँ पे अगर एक ऑप्टिकल एक्टिव हो गया तो उसका इनर्शिया भी ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा ना, तो 2 वो और उसका इनर्शिया। ओके सर। वैसे 2 टोटल अगर देखा जाए तो 2 वो और उसका इनर्शिया। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सके, सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर फैमिली ऑफ स्टीरियोइसोमर्स में सबके सब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, then there is no meso compound, so number of mesoforms is equal to 0। ओके, अब आप खुद ट्राई करो सेकंड वाला। पहला वाला मैंने बता दिया। if you have understood that, just take 3 minutes and try to solve this। after 3 minutes I'll discuss।
Okay. Yes, what is the value of n? Yes, what is the value of n? कितने कार्बन एटम्स है ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे ग्रुप्स अटैच्ड है? 4. 4. 4. So n is equal to 4. So 4. 4/2 करोगे then equal to 2. तो मतलब क्या है 2 का मैक्सिमम नंबर ऑफ डैशेस व्हिच यू कैन यूज इज इक्वल टू 2. तो 0 भी यूज कर सकते हो, 1 भी यूज कर सकते हो, 2 भी यूज कर सकते हो. तो 0 से चालू करेंगे. फर्स्ट 0 वाला एक भी डैश यूज नहीं किया है तो 0 डैश, सारे के सारे वेज पे डाला है. तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर. सेकंड स्ट्रक्चर एक CH3 को डैश पे डाला है. अब कोई बोलेगा कि आपने इस वाले CH3 को क्यों डैश पे डाला है, इस वाले को क्यों नहीं डाला? हाँ तो डालो, कोई भी एक को डाल सकते हो, चाहे इसको डैश पे डालो या इसको डैश पे डालो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना. Now I can use 2 dashes. तो ऐसा हो जाएगा, इन दोनों को डैशेस, 2 डैशेस, और फिर अपोजिट वालों को. सो 0 डैश वाला कंपाउंड पहला वाला, 1 डैश वाला कंपाउंड दूसरा वाला, और तीसरा और चौथा क्या है 2 डैशेस वाले कंपाउंड. तो 4 ड्रॉ कर पाए हम लोग, इससे ज्यादा ड्रॉ नहीं होंगे. अब चेक करते हैं कि हर एक कंपाउंड में से ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं. ओके, फर्स्ट वन ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? Inactive. फर्स्ट वाला this can act as a POS, plane of symmetry, so optically inactive. नेक्स्ट वाला सेकंड वाला क्या होगा? Inactive. यहां से ऐसा POS हो सकता है, so optically inactive. What about this one, third one? Inactive. Why? सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से जाओगे तो CH3 डैश पे, यहाँ पे आओगे CH3 डैश पे, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव. व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री. POS. सो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव. सबके सब ऑप्टिकल इनएक्टिव है फैमिली में. तो नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स टोटल कितना होंगे? 4. ऑप्टिकली एक्टिव 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव 4, एंड मीजो भी 0. 5 मीजो 0. फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो मीजो भी 0. सो देयर इज नो मीजोकॉर्ड हियर. में जब n ऑड आ रहा होगा तब क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन. यस, आ गया तुम्हारे सवाल का जवाब था. 1 2 3, so n is equal to 3.
3 is an odd number. The number of points, number of carbon atoms containing groups is equal to 3 in this interdependent system. तो 3/2 करना पड़ेगा 1.5. जब भी ऐसा आएगा तो ये जो है इसको राउंड ऑफ करके लोएस्ट वाले इंटीजर पे लेके जाना है. तो 1.5 will be rounded off to 1. So whenever the value of n by 2 is not an integer, you will have to round it off to the next lowest possible integer. तो 1.5 को राउंड ऑफ करोगे 1 पे, 4.5 को राउंड ऑफ करोगे 4 पे, 3.5 को राउंड ऑफ करोगे 3 पे. तो ये याद रखना पड़ेगा आपको. लिख लो या चाहते हो तो. ओके. तो 1.5 को अगर मैं 1 कर दिया तो मतलब एक ही डैश मैं यूज कर सकता हूं इसमें. तो एक ही डैश यूज करेंगे. So I can draw the structures now. ये दो स्ट्रक्चर्स आएंगे बस. पहला जहाँ पे 0 डैश और यहाँ पे 1 डैश. और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है. Now check इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, सब देखो. This is again having a POS, so optically inactive. Again this is having a POS, so optically inactive. So total number of क्या होगा? Stereoisomers is equal to 2. Number of optically active forms 0, optically inactive forms 2, meso 0. सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना वो. हो गया सर. ओके फाइन. तो हो गया. ये दो ही है मतलब. Okay, now try this. Try करो ये वाला. Try to solve this. Yes. Tell me.
Again, there are interdependent systems. सर इसका आंसर 4 है क्या, नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स? I understood where you have gone wrong. Approach correct है, लेकिन शुरुआत में सही किया है, बाद में you have gone wrong. But good, at least you have gone till halfway, or rather 75% of the sum has been done. Okay. So let's start from the beginning. Tell me, stepwise, what is the first step? सर तीनों वेज पे हाँ, नहीं वैसे सर नहीं, बिल्कुल n3 आएगा। n is equal to 3. What is n? अच्छा एक बात बताइए, n क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करोगे? अगर किसी ने तुमको पूछा कि n क्या है, मतलब इस केस में जो हम लोग कर रहे हैं इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स में, व्हाट इज n? n is the number of n is the number of carbon atoms. N is the number of carbon atoms to which groups are attached. Okay. N is the number of carbon atoms to which groups are attached in such a compound where interdependent GI is possible. Okay. N is equal to 3. 3 upon 2, 1.5. इंटीजर नहीं है तो उसको 1 कर देंगे। तो एक ही मैं डैश यूज कर सकता हूं, तो मैक्सिमम एक डैश, मतलब तो 0 डैश या 1 डैश। तो फर्स्ट सर अब भी हमें इनैंशियोमर्स भी बनाने पड़ेंगे। बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल देंगे कि हाँ इसके इनैंशियोमर है, ऐसा करके बोल देंगे। सो फर्स्ट वन, all 3 wedges, so 0 dash. So now you people have understood. Good. भाई मैं बोल रहा हूँ, आप खुद जब तक नहीं करोगे क्वेश्चन तब तक आपको पूरा क्लैरिटी नहीं आएगा। ओके, सेकंड वन, 1 dash, बट दिस डैश हैज बीन यूज्ड फॉर आयोडीन एटम। अब देखो ये तीनों के तीनों अलग ग्रुप्स है, तो ये मत बोलना कि बस एक डैश से हो गया। एक बार आयोडीन को डैश में लिया, अभी एक बार CH3 को डैश में लेंगे और एक बार ब्रोमीन को डैश में लेंगे। So 1 dash, 1 dash, 1 dash, 3 dashes, 3 ग्रुप्स अलग अलग है, इसके लिए तीनों को ही एक एक बार करके एक एक डैश पे लेना पड़ेगा। तो और पॉसिबिलिटी तो कुछ नहीं है, क्योंकि एक डैश के साथ हम लोग यूज कर नहीं सकते। 1 बोला है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डैशेस। अब क्या करना है, अब देखना है इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है। फर्स्ट वन, ऑप्टिकली एक्टिव, कोई भी POS COS नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। सेकंड वन, सेम, कोई भी POS और COS नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। थर्ड वन, कोई भी POS और COS नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। फोर्थ वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है तो उसका इनैंशियोमर भी बनेगा। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का इनैंशियोमर भी बनता है और वो इनैंशियोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, व्हिच मींस टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स विल बी इक्वल टू, इसका इनैंशियोमर को भी लेना पड़ेगा, इसका इनैंशियोमर को भी लेना पड़ेगा, इसका इनैंशियोमर को भी लेना पड़ेगा, इसका इनैंशियोमर को भी लेना पड़ेगा। तो क्या है आंसर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स का? यस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स? 8। हर एक का इनैंशियोमर भी आएगा ना, सो यही लिखा है मैंने। सर ऊपर हम इनैंशियोमर को ऐड क्यों नहीं कर रहे थे? ऊपर इनैंशियोमर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ कोई भी मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है उसका इनैंशियोमर पॉसिबल नहीं होता है, वो आइडेंटिकल हो जाता है। हाँ। दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बिकॉज़ कोई भी यहाँ पे ये नहीं है, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म एक भी नहीं है ना, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। सर यस सर थोड़ा ऊपर कीजिए, वो CH3 पे अगर प्लेन लेंगे तो फिर सर थोड़ा ऊपर। और सर फर्स्ट वाले में अगर CH3 पे प्लेन लेंगे तो फिर वो ऊपर के दो तो आ जाएंगे ना, POS आइडेंटिकल। बट यहाँ पे आया है, यहाँ पे ब्रोमीन है ना, अलग एटम्स है ना, तो सेम कैसे? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ समझ गया सर।
सर मेसो सब होंगे ना? यहाँ पे मेसो नहीं है ना, मेसो के लिए तो खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए ना, हाँ हाँ। सो देयर इज नो मेसो कंपाउंड। मेसो जो होता है वो खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन उसके फैमिली में कोई और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हाँ सर। ओके, ओके, लेट्स डिस्कस दिस फेशियल प्रोजेक्शन क्या है। तो फेशियल प्रोजेक्शन, अब देखो फेशियल प्रोजेक्शन का ये जो फेशियल प्रोजेक्शन क्या है, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट। तो अब उस वक्त मैं सिर्फ पेपर को अपना प्लेन मानूंगा या स्क्रीन को अपना प्लेन मानूंगा और उसके हिसाब से देखूंगा। तो ऐसा है कि जो आपको दिख रहे हैं सी और डी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप्स दिखाए गए हैं सी एंड डी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप दिखाए गए हैं सी एंड डी, दे आर एक्चुअली कमिंग आउट टुवर्ड्स यू, दैट इज स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। सो दे आर नॉट इन द प्लेन, दे आर नॉट इन द प्लेन ऑफ स्क्रीन। मानो ये पेपर जो दिख रहा है, स्क्रीन जो दिख रहा है, स्क्रीन से बाहर निकला हुआ है आपकी तरफ सी और डी। तो जो भी हॉरिजॉन्टल पे दिखाया जाएगा फिशर में, उसका मतलब ये होता है कि जो ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल लाइंस पे हैं, they are coming out towards you, so they are protruding out of the screen and they are towards you, okay। और जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप्स दिखाए जाते हैं ए और बी जैसे इस केस में है, they are behind the plane, that is ये जो स्क्रीन है उस स्क्रीन से पीछे है। तो स्क्रीन से पीछे है ए और बी और स्क्रीन से निकले हुए हैं सी और डी आपकी तरफ। सो सी एंड डी आर टुवर्ड्स यू, whereas A and B are away from you, behind the screen। तो ये पता होना चाहिए कि कौन आपकी तरफ है और कौन स्क्रीन के पीछे है। तो जो भी वर्टिकल लाइन पे ग्रुप दिखाए जाते हैं वो स्क्रीन के पीछे भी, पेपर से पीछे होते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल को 2D फॉर्म में। तो ये हमारा जो प्लेन है, ये जो स्क्रीन है, उसी को हम लोग मान रहे हैं अपना प्लेन, स्क्रीन या पेपर को प्लेन मान रहे हैं। तो उसके पीछे जो है वो ए और बी है और उससे निकले हुए हैं आपकी तरफ सी एंड डी। सो सी एंड डी आर कमिंग आउट टुवर्ड्स यू, whereas A and B are going behind the plane, away from you। सेम थिंग वापस मैं एक्सटेंड कर सकता हूं इसको, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रुप्स दिखाए जाते हैं वो हमेशा आपकी तरफ आ रहे हैं, और जो भी वर्टिकल लाइन पे ग्रुप दिखाए जाते हैं फिशर में, दे आर बिहाइंड दिस पेपर और स्क्रीन।
ओके, वही लिखा है यहाँ पे। So those groups which are shown on horizontal lines in Fisher projection lie above the plane, coming out of the paper or screen towards us. Above क्यों बोल रहे हैं? Because वो हमारी तरफ आ रहे हैं, स्क्रीन से बाहर हमारी तरफ आ रहे हैं, so they are called above the plane. They are shown along wedges. तो कौन से यहाँ पे ऐसे हैं? ये वाले C, D, E, F. And those groups which are shown on vertical lines lie behind the plane, that is going out of the paper or going out of the screen, behind, away from you. And hence they are shown along dashes. सर पहला पॉइंट दिखाइए। सर थोड़ा नीचे। हो गया सर। Okay. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे काम की है वो दिखाता हूँ। This is the heading. Conversion of wedge dash formulae or line diagrams to Fisher projection and vice versa. अब इसको ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूँ, पहले समझ लो और बाद में कॉपी करो। अगर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया ये वाला, इस वाले मॉलिक्यूल का, और इसको अगर हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन पे दिखाया तो कैसे दिखेगा? ऑब्जर्व दैट। अब लिखना बंद कर दो, मैं अभी जो समझा रहा हूँ वो बाद में बहुत काम आएगा, तो जस्ट ऑब्जर्व। क्या करना है? फोकस ऑन ग्रुप्स which are present in the plane, that is 3D plane में अगर देखेंगे, मतलब क्या? Forget or ignore those groups which are on dashes and wedges. I repeat, ignore those groups which are present on dashes and wedges. Just focus on the others. If you focus on the others, then F and C are the ones which you have to focus on. मतलब अभी कार्बन एटम जो कायरल है वो दो है, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी आपको कैसे देखना है? ऐसे देखो, ऊपर से देखो, तो ऊपर अगर लगाओगे फिशर प्रोजेक्शन, अगर ऐसे लगाओगे तो क्या करोगे? यहाँ पे बिल्कुल ऊपर देखो, पहले बिल्कुल ऊपर देखोगे तो एफ नजर आएगा। आई रिपीट, सिर्फ उसको मैं देख रहा हूं जो डैश और वेज पे नहीं है। तो डैश और वेज पे कौन नहीं है? एफ नहीं है और सी नहीं है, तो मैं एफ और सी को देख रहा हूं सिर्फ, बाकी किसी को नहीं देख रहा हूं। I will put F here and I will put C here, that is along the vertical line. Why am I putting F there and C here? Because मैं अगर देख रहा हूँ इसको तो ऊपर की ओर मुझे F दिख रहा है, नीचे की तरफ मुझे C दिख रहा है। इसके लिए फिशर में भी मैं बिल्कुल ऊपर में F डाल रहा हूँ और नीचे में C डाल रहा हूँ।
That is the first thing to be understood. Second thing, now ऊपर से आप जब आ रहे हो तब ये आपको कार्बन पहला मिलेगा कैरल, दिस वन, दैट इज दिस वन। तो ऊपर से आप नीचे की ओर ट्रैवल कर रहे हो तो जो पहला कैरल कार्बन है वो है ये वाला। तो अब इस कैरल कार्बन पे हमें डालने हैं कौन से ग्रुप्स, डी और ई। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन डैश एंड वेज वाले ग्रुप्स। तो ट्रिक ये होता है, फोकस ऑन दैट ग्रुप व्हिच इज ऑन वेज। कौन सा ग्रुप वेज पे, यहाँ पे डी इज ऑन वेज। और आपको वो किस तरफ दिख रहा है, अपने हिसाब से वो राइट पे दिख रहा है कि लेफ्ट पे दिख रहा है, बताओ। डी इज ऑन राइट और डी इज ऑन लेफ्ट? राइट। डी इज ऑन राइट, डी राइट पे है, तो यहाँ पे डी को लेफ्ट पे डाल देना है। तो ये ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, जो भी ग्रुप होता है वेज पे, वो अगर नॉर्मल डायग्राम में राइट पे हो तो फिशर में लेफ्ट पे डालना है, और नॉर्मल डायग्राम में लेफ्ट में हो तो वो फिशर में राइट पे डालना है, तो उल्टा करना है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले कैरल कार्बन पे आ जाओ, वहां पे बी है आपके वेज पे, तो बी इज ऑन लेफ्ट और बी इज ऑन राइट? बी इज ऑन लेफ्ट। बी इज ऑन लेफ्ट, तो यहाँ पे बी आप राइट पे डालो, हो गया कन्वर्ट। अब क्या बाकी रहे उनको फिल कर दो। यहाँ पे ई बाकी रहता और यहाँ पे सी बाकी रहेगा, बी। तो ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन इस चीज का। ओके, तो ये तो आसान था, ये ऊपर से नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ था। सर बट वर्टिकल में डैश वाले होते हैं, आप बोले थे। हाँ, तो उसको मैं ये कर दूंगा ना, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इज फ्री, तो वो करती हुई अल्टीमेटली वही आएगा। I told you ना, an even number of interchanges around the carbon does not change the molecule. तो यहाँ पे आप even number of interchanges कर दो तो हो जाएगा फिर डैश मैच में। ओके, अब ये वाला देखते हैं। अब उल्टा जाते हैं, ये अगर फिशर प्रोजेक्शन है तो इसको कन्वर्ट करना है लाइन डायग्राम में। तो एक तो तरीका ये हो सकता है, करेक्ट, या ऐसे भी हो सकता है। तो अगर मैंने ऐसे दिखाया, x यहाँ पे, y नीचे, तो x ऊपर y नीचे, यहाँ तक हो गया क्लियर सब? अब पहला कैरल कार्बन जब नीचे की ओर आ रहे हो आप x से, तो p और q है, p और q ग्रुप्स है, तो p is on left and q is on right. If we look here, p is on left and q is on right. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप को मैं वेज पे लूंगा और एक ग्रुप को मैं डैश पे लूंगा, राइट? किसको वेज पे लेना पड़ेगा, पी को कि क्यू को? सर कोई भी नहीं ले सकते ना। मैंने क्या बोला था, जो वेज वाला होता है, यहाँ पे वेज कहाँ बनाया मैंने, यहाँ पे वेज मॉलिक्यूल के राइट पे है ना, ई को मॉलिक्यूल के राइट में है अगर वेज यहाँ पे, तो फिशर में वो उल्टा हो जाता है, लेफ्ट में चला जाएगा फिशर में। तो फिलहाल फिशर में लेफ्ट पे कौन है, पी या क्यू? पी इज ऑन लेफ्ट, राइट? व्हिच मींस यहाँ पे पी डालना पड़ेगा वेज पे। बाय, बिकॉज यहाँ पे अगर मैंने पी को वेज पे डाला है तो यहाँ पे मुझे राइट की ओर दिख रहा है पी, यहाँ पे पी लेफ्ट की ओर दिख रहा है। सो फाइन, जो भी वेज पे होता है राइट पे अगर नॉर्मल डायग्राम में, तो फिशर में वो लेफ्ट में होता है। Hence I have to put P on veg. So Q has to be on dash. Okay. फिर यहाँ ऐसे दिखाऊं तो, अब वेज कहाँ बनाया है मैंने वेज अभी लेफ्ट की ओर बनाया है,
तो अभी जो ग्रुप फिशर में राइट है वो वेज पे आना चाहिए, यानी S. एस। एस। तो यहाँ पे एस एंड आर ऐसा हो जाएगा। ओके, अब इसी चीज को इस तरीके से बना के देखते हैं। नाउ व्हाट विल बी डू, सिंपल, वापस कंपेयर करो, फिशर को देखो, तो x ऊपर वाला है, तो ठीक है, x यहाँ पे ऊपर वाला है। अब अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया एक वेज, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक वेज, अगर यहाँ पे मैं लगा दिया एक वेज, तो अब मुझे ध्यान से बताओ, इस मॉलिक्यूल को मैं अगर ऐसे देखूं, इस तरीके से देखना है मुझे, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। ओके, मॉलिक्यूल को ऐसे क्यों देखना है, बिकॉज ये एक्स और वाई के साथ देखना होता है ना। तो एक्स और वाई डायगोनली है, तो डायगोनल का इस तरफ राइट माना जाएगा और इस तरफ लेफ्ट। नॉट अगर वेज वाला ग्रुप राइट में यहाँ पे है, तो फिशर में वो लेफ्ट में आना चाहिए। सो पी, तो यहाँ पे पी डालूंगा। सर ये नीचे वाले दोनों आप अलग अलग है कि सेम ही है दोनों? सेम है ना, बट आई एम ड्राइंग इट इन डिफरेंट मैनर। मतलब पहले मैंने ऐसे लिया था जिगजैग, अब मैं जिगजैग ऐसा ले रहा हूँ, तो वो दिखा, बिकॉज आपको मॉलिक्यूल कोई भी दिया जा सकता है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके। तो अब ऐसे पी बनाएंगे और फिर ऐसा हो जाएगा क्यू। अब यहाँ पे अगर मैंने बना दिया वेज, तो इसके हिसाब से ये लेफ्ट में आया, तो लेफ्ट पे वेज है, तो वेज वाला ग्रुप यहाँ पे राइट पे आना चाहिए, मतलब एस। तो ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, इसके लिए बीच में और लिखा है मैंने। इज इट क्लियर? राइट लेफ्ट सर पहचानना इसके कैसे? और केसेस भी होंगे क्या, या सिर्फ ये दो ही होंगे? अभी तुमको अगर ऐसे करना है कि ऐसा बनाना है, तो एक्स वाई ऐसा हो जाएगा, तो फिर ये राइट और ये लेफ्ट ऐसा हो जाएगा। फिर तो वो तुम्हारे ऊपर है कैसे दिखाना चाह रहे हो। तो उसके साथ क्या हो जाएगा देख लेते हैं, मतलब ऐसा करके बना लिया तो ये एक्स और ये वाई, अब वेज कौन से साइड में है, इसके हिसाब से सर लेफ्ट लेफ्ट में है। सर वेज और डैश मैं अपने हिसाब से लेफ्ट और राइट में ले सकता हूँ क्या? मतलब जैसे अभी आपने लेफ्ट में लिया, मैं राइट में ले सकता हूँ? अच्छा, इसके अंदर, हाँ, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। ओके, तो अभी लेफ्ट में मैंने लिखा है वेज, तो राइट में कौन ग्रुप है यहाँ पे भी, क्यू। क्यू इज ऑन राइट इन फिशर, तो क्यू विल बी ऑन लेफ्ट इन वेज, और फिर पी इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैंने वेज दिखा दिया, तो वेज इज ऑन राइट नाउ। अब इसके हिसाब से देखा जाएगा तो वेज अभी राइट पे है। वेज अगर यहाँ पे राइट पे है, तो वेज वाला ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट में होना चाहिए, यानी यहाँ पे लेफ्ट में आर है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे एस। तो कैसे भी दिखाओ मॉलिक्यूल को, ऐसे दिखाओ और ऐसे दिखाओ और ऐसे दिखाओ, ऑल विल बी द सेम। ओके सर। राइट,
Yes, sir. So conversion of wedge dash formula to line dash to Fisher is very important. इसके लिए you might have. सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये वाला. This is the most common one. Okay, thank you. Thank you, sir.